ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਮੋਸਟ ਸੀਕਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਤਾ ਔਰ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ISI ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 21-20 दिन हुए हैं जी, 20 दिन में करप्शन खत्म कर दी जी मान साहब ने। अरे भाई मेरे नाल चल के देखो, करप्शन डबल हो गई। जिन्नी तुसी गल कीती है, ये करप्शन इस तरह नहीं खत्म होया करती जिस तरीके नाल करन लगे हुए हैं। और गलत काम भी उन्ने ही चल रहे हैं। माफिया राज पहला अकाली दल सरकार के अंदर भी चलता रहा, केबल माफिया भी सी, ट्रांसपोर्ट माफिया भी सी, माइनिंग माफिया सी, होर माफिया सारे सी। ये कांग्रेस सरकार आई, असी जी ये खत्म करांगे, कसमां भी खा लियां, कांग्रेस च होर वध गया। अज मान सरकार आई है, लोगों ने इस आशा नाल इन्हां नूं चुनिया कि ये खत्म करनगे, अज होर ज़्यादा वध रहा। और जिहड़ी गल ये कहंदे आ कि खत्म हो रहा, खत्म किते भी नहीं हो रहा। और इन्हां दे मैं राजपुरे बैठदा, रोज़ मेरा दफ्तर भी हैगा उत्थे, उत्थों ही मैनूं पार्टी ने पहलां चुनाव लड़ाया सी, ते उत्थे मैं देखदा कि सट्टा बहुत ज़्यादा चलदा। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ 150 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਟਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ SSP ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, बड़े लोग आए और इस तो बाद भी बड़े आने जाने हैं। ये तो 25 साल तो चल रहा और ये जैनुअन चलता, जैनुअन लॉटरी भेजते हैं। फिर जो मैं स्टिंग करवा के न्यूज़ 18 ते चलवाया, उस तो बाद 150 दुकान उत्थे बंद हुई। तो ये इस तरह का काम है। इस तरह प्रशासन का भी सहयोग हो जाता। ये पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स और समगलर या व्यापारी, उन्होंने कह लो जो कहना, इन्हों का नैक्सस है ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ CCTV 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਕੌਣ ਇਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਰੇਵ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਜੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ DGP ਵੀ ਐਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਡ ਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ
ऐसे प्रधानमंत्री आए ने जो किया इस मुल्क का प्रधानमंत्री सिख रहा, राष्ट्रपति भी सिख रहा, पर किसी ने भी 84 की नस्लकुशी दी सज़ा नहीं दी। और मोदी जी ने आके किन्ने साल बीत जाने तो बाद, दहाकियां तो बाद सज़ा दवाई, दोबारा सिट बनाई। ये बहुत बड़ा काम सी। करतारपुर साहब का कॉरीडोर 70 सालों दी अरदासां नूं बूर पाया। सिख उत्थे जाके अरदासां करते सी और दर्शन दीदार होने लगे। फिर कोविड की महामारी आ गई, उहदे तो सुरक्षित करके वैक्सीनेशन करवा के 1 करोड़ 3 लाख लोगों को उस वेले तक वैक्सीनेशन हो चुकिया सी। वो करवा के फिर दोबारा लांघा खोलिया। ये ऐसे प्रधानमंत्री ने। और फिर साहिबजादियां दी शहादत उस नूं नमन करना, पूरे देश च करना, उन्होंने याद करना, उन्होंने किताबां च पढ़ाया जाना। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपना इतिहास भुल जांदियां ने, अपने शहीदों नूं भुल जांदियां ने, अपने विरसे नूं भुल जांदियां ने, ना वो कौमां जिंदा रहिंदियां ने, ना वो देश रहिंदे हैं, ना वो व्यक्ति महान हो सकता। और एक इतिहासकार ने लिखा कि जे होर 100 साल साहिबजादियां दी इस शहादत नूं याद ना किया जाता, नमन ना किया जाता, किताबां 'च ना पढ़ाया जाता, तो लोगों ने क्या करना सी उस वेले जदों दसदे कि काल्पनिक कहानियां हो सकदियां ने, इस तरह की शहादत नहीं हो सकती। तो इसलिए वो मोदी जी ने किया और पहले प्रधानमंत्री ने जिन्हों ने किया। और मैं समझदा कि उन्होंने वाहवा होनी चाहिए सी। और सिख कौम नूं और जिहड़ा साडा इतिहास आ उसनूं याद करन लई मैं इंडोनेशिया एक मुल्क आ, उत्थों का राष्ट्रपति जिहड़ा सुकार्नो रहा 21 साल। और उत्थों के बैंक का नाम जिहड़ा कुबेर बैंक आ, उत्थों की एयरलाइन का नाम गरुड़ एयरलाइन आ। उत्थे राम नूं सब तो ज़्यादा मन्निया जाता, रामलीला उत्थे सब तो वधिया हुंदी है। जदों उन्होंने पुछया मुस्लिम देशों की कानफ्रेंस गए, उन्होंने लड़कियां दे दोनों के नाम पद्मावती, मेघावती हिंदू नाम। जदों जाके पुछया भी तुसीं इस्लाम नूं मन्नण वाले हो, इस्लामिक कंट्री आ, मुसलमान हो तुसीं क्यों हिंदू नाम रखे ने? वो कहता ये मेरा इतिहास आ, ये मेरा विरसा, ये मेरा पिछोकड़ है, मैं इनू बदल नहीं सकता। मैनू उहदे ते फख्र करना पऊगा, गौरव करना पऊगा। असी उस वेले हिंदू सीगे, अज असी इस्लाम नूं मनण वाले। मैं अपने विरसे ते फख्र करदा ते इस करके मैं ये मनदा, इस करके बच्चियां दे नाम मैं हिंदू नाम रखे ने। ते जे सुकार्नो एक मुसलमान जिहड़ा बन गया वो इन्ना फख्र कर सकदा। ते असी इंडिया सरकारां निकल गईयां, अज 74 सालां बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद कर रहे हैं। किसी ने पहलां याद नहीं किया, किसी ने पहलां कहा नहीं कि साहिबजादियां नूं भी नमन कर लो। तो इसलिए मैं ये समझदा कि काली सूची किसी ने मंग नहीं की। काली सूची बिना मंगण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म की है। 36 सालों तो लोग बिना किसी कसूर तो घर नहीं आ पा रहे सी। इस करके नहीं आ पा रहे सी कि वो सिख सी, होर तो कोई कारण नहीं सी, उन्होंने सिर ते पगड़ी सी, इस करके काली सूची च पाते। तो मैं ये समझदा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। होर बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां सिख कौम के लिए प्रधानमंत्री ने कीतियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ खालसा के लिए कीतियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब के लिए कीतियां ने। इस तो सुहिरद प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। उन्हां दीयां गल्लां नूं मनना, उन्हां ते बीजेपी के एक वर्कर नूं फख्र करना चाहिए और पंजाबियों को भी जरूर फख्र करना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री सानूं मिलिया। उन्होंने जाके दस्सण की जरूरत पैंदी है। भाई साहब भाई रणजीत सिंह जिहड़े पटना साहब के मुख सेवादार ने, जथेदार साहब ने, उन्होंने की कहा नरेंद्र मोदी जी को मिले। उन्होंने कहा कि साडा 3 टन गोल्ड अमेरिका ते कनैडा की संगत ने इकट्ठा किया। उत्थे जिहड़े गुंबद ने, पटना साहब गुरु साहब का जन्म स्थान है, वो गोल्ड दे बना, उहदे तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उस वेले उन्होंने कहा कि जे कोई कमी रह जाए, होर गोल्ड चाहिए हो तो सानू दसो। तो ये गोल्ड आउण च कोई किसी को रुकावट नहीं आएगी। लंगर तो GST हटाती। जिहड़ी गल उन्होंने कही जाती है उस गल नूं वो करते हैं। इसलिए कुछ लोग इत्थे जान बुझ के पंजाब दे अंदर विरोध करने लिए बैठे ने और कौम का नुकसान करने लिए बैठे ने और पंजाब का नुकसान करने लिए बैठे ने। तो इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री सानू मिलिया तो सानू उन्हां दा सहयोग करके सानू पंजाब नूं अगे वधाउणा चाहिए।